So here we begin with the fourth part of the lovely chapter that we are doing, Summer of the Beautiful White Horse. And last we had left it here when the mother was pacifying John Byro, telling him that Uncle Khosrow is just a big man, but he has a gentle heart and he just misses his homeland. So now let us see when Aram has discovered, Aram already knows now that the horse belongs to John Byro. So the cat is out of the bag, as in now the reality is in front of him. So he knows that the horse belongs to John Byro. So he says, the farmer went away and I ran over to my cousin Murad's house. Jaise hi John Byro went away, he ran to his cousin's Murad's house. He was sitting under a peach tree. So Murad was sitting under a peach tree. Peach fruit hota hai. Trying to repair the hurt wing of a young robin. Robin is a beautiful bird, a small blue bird, okay, which could not fly. So he was repairing the hurt wing of a young robin. तो एक छोटा सा robin bird था, उसके wing में कुछ problem था, तो he was trying to treat that hurt wing of this bird, which could not fly. So he was helping that bird, and Aram says he was talking to the bird. So जैसे ही Aram वहाँ पहुँचा, तो Murad asks him, what is it? He said, the farmer, John Byro, I said. He visited our house. He wants his horse. You've had it a month. तो जो Aram बोलता है कि John Byro घर आया था, and he wants his horse. And you have this horse for a month now. And now see what he says. Aram says, I want you to promise not to take it back until I learn to ride. और Aram कहता है, अब तो मुझे promise करो that you are not giving this horse back till I learn how to ride. So he just wants to learn how to ride. और उसको लगता है कि अगर मुराद ने 1 महीने से ये हॉर्स अपने पास रखा है तो 1 महीने और रख सकता है और मैं इतने राइडिंग सीख जाऊंगा. It will take you a year to learn to ride, my cousin Murad said. और मुराद ने Aram को बोला, who is just 9 years old, कि भाई पूरा 1 साल लगेगा तुमको to learn how to ride. We could keep the horse a year, I said. And look at Aram, this little kid. उसे कोई फिक्र नहीं है कि ये हॉर्स चोरी करा है और उनकी जो ट्राइब का जो हॉलमार्क है वो it is at stake. They are doing something which is completely against their tribe, their family. So he is just saying कि we could keep a horse, we could keep this horse for an year, I said. My cousin Murad leaped to his feet. और ये सुनते ही cousin Murad बिल्कुल उठ गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया और जोर से बोला, what? He roared. Are you inviting a member of the Garoglanian family to steal? और उसने Aram से बोला कि क्या तुम एक Garoglanian family member को बोल रहे हो कि वो चोरी करे? The horse must go back to its true owner. तो बोलता है the horse must go back to its true owner. And my dear children, who is the true owner? The true owner is John Byro. When? I said. In 6 months at least, he said. So Murad said कि okay, but only for 6 months. 6 महीने के अंदर अंदर this horse has to go back to John Byro. And then what did he do? He threw the bird into the air. उसने ऐसे करके हवा में bird को उछाला. The bird tried hard. Why is the bird trying? The bird is trying hard because it wants to fly and its wing has been hurt. So the bird tried hard, almost fell twice. और 2 बार तो ऐसा हुआ कि it almost fell twice, but at last flew away high and straight. But at last क्या हुआ? The bird was able to fly. That means ये जो यहाँ पे वो उसका जो hurt wing वो ठीक कर रहा था वो ठीक हो गया and the bird was able to fly and it flew away high and straight. So now the deal is done. Aram and Murad are going to keep the horse for 6 months और deal यही है कि Aram is going to learn how to ride the horse. Early every morning for 2 weeks. और इस incident के बाद for the next 2 weeks. Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn. You know what a barn is? I have also sent you the picture, ठीक है? Of the deserted vineyard. Deserted का भी meaning आपको बताया था. That is not functional anymore. Vineyard, where we were hiding it and rode it. तो कहाँ पे छुपाया था? फिटविजान के barn में.
विनयार्ड का जो बान था. एंड एवरी मॉर्निंग फॉर द नेक्स्ट 2 weeks दे टुक इट आउट फॉर राइडिंग. एंड एरम सेज एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन. जब मुराद राइड करता था तो बहुत बढ़िया, बट जैसे ही एरम की टर्न आती थी टू राइड अलोन, लीप्ड ओवर ग्रेप वाइन्स एंड स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे. और क्या होता था, बिकॉज एरम को तो हॉर्स राइडिंग आती नहीं है, तो मुराद तो उस हॉर्स को कंट्रोल कर लेता था, बट एरम वॉज नॉट एबल टू डू दैट. तो हर रोज वो जो है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स द इरिगेशन डिचेस, इट यूज टू लीप ओवर द ग्रेप वाइन्स. ग्रेप प्लांटेशन के ऊपर से कूदता था, स्मॉल ट्रीज के ऊपर से कूदता था और फेंक देता था एरम को, एंड यूज टू रन अवे. नेवरदलेस, आई होप्ड in time to learn to ride the way my cousin Murad rode, but Aram did not give up. उसको लगा कि in time मुझे horse riding आ जाएगी and I will be able to ride. One morning on the way to Fitvijan's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. अब एक सुबह ये अपनी राइडिंग करके लौट रहे थे, और कहाँ जा रहे थे, वापस उसी बान की तरफ जा रहे थे जहां पे उन्होंने इस हॉर्स को रखा था. और रास्ते में इनको कौन मिल गया, जॉन बायरो. दे रैन इनटू द फार्मर मतलब दे केम अक्रॉस दिस फार्मर जॉन बायरो. ही वाज आल्सो कमिंग फ्रॉम वेयर, नो, ही वाज ऑन हिज वे टू द टाउन. वो शहर जा रहा था जॉन बायरो. रास्ते में ये लोग आपस में टकरा गए. दे रैन इनटू ईच अदर. तो मुराद ने क्या कहा, let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with farmers. And once again we come to know, जो मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था बेटा, कि this could be or this is the catchphrase of Murad. जैसे अंकल कॉस्ट्रोफ का कैच फ्रेज था, ऐसे ही ये मुराद का कैच फ्रेज है. एंड व्हाट डिड ही से, आई हैव अ वे विद फार्मर्स. तो उसने एरम से कहा कि मुझे बात करने देना, तुम जॉन बायरो से तुम कुछ मत बोलना, बिकॉज आई हैव अ वे विथ फार्मर्स. मेरे पास आई हैव अ वे, आई हैव दिस नेचुरल गिफ्ट ऑफ डीलिंग विद फार्मर्स. तो इधर उसने कहा था कि आई हैव अ वे विद हॉर्सेस or maybe with animals. Let me get back to that line. And he had said that I have a way with the horse. Yes, here. So here he had said I have a way with the horse, and now he is saying I have a way with farmers. और इधर हमने देखा बेटा कि he was even very very comfortable with this little bird. He was talking to the bird. Yes, Aram clearly tells us he was talking to the bird. Who is this he? This is Murad. कि वो bird से बात कर रहा था. That means he had some understanding with the bird also. और उसने उसका हर्ट विंग ठीक कर दिया और बर्ड फिर अपना उड़ के चली गई जहां उसको जाना था. सो नाउ मुराद एंड जॉन बायरो विल हैव अ कॉन्वर्सेशन. गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माय कजन मुराद सेड टू द फार्मर. अब जॉन बायरो ने हॉर्स देखा और ही स्टार्टेड स्टडीइंग द हॉर्स ईगरली. भाई डेफिनेटली आपको अगर अपनी कोई चीज खो गई हो और उसको बिल्कुल आपको दिख जाए तो आप उसको स्टडी करेंगे नहीं करेंगे. तो व्हाट इज नाउ जॉन बायरो गोइंग टू से, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड. और उसने क्या बोला, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉर्स. माई हार्ट, माई कजन मुराद सेड इन आर्मेनियन. तो आर्मेनियन लैंग्वेज में जो नाम उसने उस हॉर्स का लिया उसका इंग्लिश में मतलब था माई हार्ट. ठीक, अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स. कहता है अ लवली नेम फॉर अ लवली हॉर्स, और बोलता है आई कुड स्वेयर इट इज द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो. मे आई लुक इन टू हिज माउथ. और कहता है यार मैं कसम खा के कह सकता हूं, आई कैन स्वेयर कि ये बिल्कुल वही हॉर्स है जो मेरे से कुछ हफ्तों पहले चुराया गया है. दिस हॉर्स वॉज स्टोलन फ्रॉम माई प्लेस. और उसके बाद उसने बोला मे आई लुक इन टू हिज माउथ, मतलब कुछ ऐसा है जो पर्टिकुलरली जॉन बायरो के हॉर्स के माउथ में था. मे बी हिज टूथ इज मिसिंग या जो भी है. तो उसने कहा कि मे आई लुक इन टू हिज माउथ. ऑफ कोर्स मुराद सेड. द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स. टूथ फॉर टूथ, ही सेड. और बोलता है कि अरे माई गॉड, दिस हॉर्स इज जस्ट लाइक माई हॉर्स. नाउ सी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग.
जॉन बायरो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये बच्चे मेरा घोड़ा चुरा सकते हैं और दे कैन स्टील माई हॉर्स. वाई? बिकॉज दीज चिल्ड्रन बिलोंग टू द गारोग्लेनियन फैमिली. और गारोग्लेनियन फैमिली किस चीज के लिए फेमस है? फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. तो वो ये शक इन पे कर ही नहीं सकता कि शायद इन बच्चों ने मेरा हॉर्स चुरा लिया हो. और वो आगे बोलता है, आई वुड स्वेयर इट इज माई हॉर्स इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स. कहता है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता, अगर तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता होता, तो मैं ये बात कसम खा के कह सकता हूं कि दिस इज माई हॉर्स. और वो ऐसा क्यों नहीं कह पा रहा है जॉन बायरो? द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू मी. कहता है आपकी फैमिली की जो फेम है, आपकी फैमिली किस चीज के लिए मशहूर है भाई? ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए. आप लोग इतने ट्रस्टवर्दी हो और आप लोग झूठ तो बोल ही नहीं सकते. तो अगर कोई फैमिली पिछले for so many centuries is famous for something, John Byro cannot put a finger on these children, on these boys. फिर वो कहता है yet the horse is the twin of my horse. और वो बोलता है कि नहीं, ये हॉर्स मेरा हॉर्स नहीं हो सकता है कि ये मेरे हॉर्स का ट्विन ब्रदर हो. Now just imagine the kind of reputation this Garoglenian family has. इनके जो हॉलमार्क्स हैं, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, ये ऐसे ही नहीं है कहने के लिए, बट एक्चुअली फॉर द पास्ट आई थिंक इट वॉज 11 centuries this family has been famous for this. Okay, so see here it says that the wealthiest family in terms of being famous for what they had, and it says they were honest first. We were proud first, honest second, and we believed in right or wrong. और कितनी centuries से they have been famous? They have been famous for 11 centuries. I am highlighting it here. कि 11 centuries से this family is famous for their hallmarks of being trustworthy and being very very honest. तो अगर कोई फैमिली पिछले 11 centuries से, right, 11 centuries is a huge number, is famous for being honest, तो उनके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते. तो जॉन बायरो इज नॉट रेडी टू बिलीव दिस. और वो कह देता है कि भाई अगर तुम इस फैमिली के बच्चे नहीं होते ना, तो मैं मान लेता कि ये हॉर्स मेरा हॉर्स है. दिस इज माई हॉर्स दैट हैज बीन स्टोलन फ्रॉम मी a few weeks back. But then now he says this horse is the twin of my horse. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. Good day, my young friends. And then he says that a suspicious man would believe his eyes instead of his heart. So here John Byro has dealt with his heart. अगर उसको शक होता तो he would have believed his eyes, क्योंकि जो उसने देखा वो बिल्कुल उसी का हॉर्स था, tooth for tooth, just as it is. But he uses his heart because he believes in this Garoglenian family. और वो लोग जॉन बायरो के ना केवल फ्रेंड्स हैं बल्कि सब जगह फेमस हैं फॉर बीइंग वेरी वेरी ट्रस्टवर्दी एंड बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट. तो उसे जरा सा भी शक नहीं होता. और वो कहता है गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. गुड डे जॉन बायरो, माई कजन मुराद सेड. अब यहां पे क्या हुआ है? यहां पे जब जॉन बायरो ने इस तरीके से इन बच्चों को ट्रीट करा और उनकी फैमिली के बारे में उनको याद दिलाया, तो ये दोनों गिल्टी कॉन्शियस हो गए. दे बिकम कॉन्शियस ऑफ देयर एक्शंस. और इनको लगा कि यार ये हम क्या कर रहे हैं, लोग हमारी फैमिली के लिए क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं, और हम यहाँ सिर्फ अपने मजे के लिए वी हैव स्टोलन दिस हॉर्स. ठीक है कि उन्होंने उस हॉर्स को कहीं बेचा नहीं, उसको टॉर्चर नहीं करा, उसे परेशान नहीं करा, बट दे हैव एंजॉयड द हॉर्स, दे हैव टेकन केयर ऑफ द हॉर्स. बट फिर भी चोरी तो चोरी है. Stealing is stealing, no matter in what form you do. So they become very guilty conscious.
और उनको दिल में ये बात बहुत इट काइंड ऑफ पिंच्ड देम कि व्हाट वी हैव डन इज नॉट राइट. कहाँ एक तरफ दुनिया हमारी फैमिली के लिए कैसी अच्छी अच्छी बातें बोलती है और कहाँ हम लोग इतने सेल्फिश हो गए एंड वी हैव डन दिस टू दिस हॉर्स. भाई ये भी तो हो सकता था कि वो जॉन बायरो से अपना हॉर्स उसका हॉर्स बोरो कर लेते या उससे रिक्वेस्ट करते. तो सही तरीके से काम करने के रास्ते बहुत सारे थे, बट ऐसा इन्होंने करा नहीं. सो नाउ व्हाट हैपेंस, अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करा इन दोनों ने, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनयार्ड. नेक्स्ट मॉर्निंग इन्होंने क्या करा, दे टुक द हॉर्स और जॉन बायरो के विनयार्ड पे ले गए एंड पुट इट इन द बार्न. इन्होंने वापस जॉन बायरो के बार्न में उस हॉर्स को ले जाकर के बांध दिया. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. अच्छा, जब आप किसी अननोन टेरिटरी में जाते हैं तो वहां पे जो डॉग्स होते हैं दे बार्क एट यू. इफ यू गो टू अ डिफरेंट कॉलोनी और यू आर अ स्ट्रेंजर टू दैट पर्टिकुलर एरिया और अ कॉलोनी एंड द डॉग्स डोंट नो यू, सो दे आर गोइंग टू बार्क एट यू. बट हियर व्हाट हैपेंड, द डॉग्स वर फॉलोइंग देम अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. Not even a single dog barked. So Aram says, the dogs, I whispered to my cousin Murad. I thought they would bark. Aram कहता है, ये dogs, मुझे तो लगा था कि ये भौंकेंगे. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. और मुराद कहता है, हाँ, they would bark at somebody else. भौंकना होगा तो किसी और पे भौंकेंगे. They cannot bark at me. Me कौन? मुराद. Why? Because Murad again uses his catchphrase, I have a way with dogs. बोलता है भाई मेरा तो एक अलग ही connection है with dogs. So first the horse, then the bird, then the farmers, and now the dogs. So this is Murad's catchphrase. और catchphrase क्या है ये बार बार आपको नहीं बताया जाएगा. It has already been given to you. So now it is the time to say goodbye to the horse. अब हॉर्स को बाय बोलना है, जाना है वहां से. तो कैसे फेयरवेल हो रहा है, माई कजन मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स. उसने अपने आर्म्स हॉर्स के ऐसे गले में अराउंड रखे. प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज एंड ही ब्रॉट हिज हेड टू क्लोजर टू द फोरहेड ऑफ द हॉर्स. मे बी प्रेस्ड हिज नोज टू द हॉर्सेज नोज, पैटेड इट और बहुत अच्छे से प्यार से ऐसे 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 करके उसको पैट करा. एंड देन we went away. This is how Murad said bye to the horse. और उसी आफ्टरनून, that very same afternoon, John Byro came to our house in his surrey. Remember? यहाँ पे जॉन बायरो की क्या प्रॉब्लम थी, उसने कहा था भाई मेरे पास तो हॉर्स ही नहीं है, मेरे सरे का क्या होगा. दैट कैरेज 10 किलोमीटर वो चल के आया था, उसके पैरों में दर्द हो गया था जिसपे अंकल कॉस्टॉफ चिल्ला के पड़े थे उसके ऊपर. बट जब हॉर्स वापस आ गया उसी आफ्टरनून तो वो एरम के घर आए. जॉन बायरो, ही केम टू आवर हाउस इन हिज सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न्ड. और उसने एरम की मदर को वो हॉर्स दिखाया जो कि पहले तो चोरी हो गया था बट फिर वापस भी आ गया. और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी बात वो बोलता है आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड. कहते हैं मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं. द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर. बोलता है कि द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर. पहले जैसा हॉर्स था उससे ज्यादा स्ट्रांग होके लौटा है. एंड वाई इज इट? बिकॉज एवरी डे बेटा द हॉर्स वॉज गोइंग फॉर लॉन्ग राइड्स. इट वॉज बींग रिडन, यू नो, द बॉयज वर राइडिंग इट. और खूब दौड़ने से उसके मसल्स को बहुत अच्छी एक्सरसाइज मिल रही थी. द हॉर्स वॉज स्ट्रॉन्गर. एंड नंबर 2 ही सेज बेटर टेम्पर्ड. पहले तो वो बहुत वाइल्ड सा था ना, बट उसको किसने कंट्रोल किया था? मुराद ने. और ये बात हमको कहाँ पता चली? बिकॉज मुराद ने खुद इस बात को यहाँ पे बोली थी कि इट वॉज नॉट इजी टू कंट्रोल हिम. ओके, हियर ऑन दिस पेज आई थिंक, नो नॉट हियर, let me see the line. Yes, yeah. It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. At first it wanted to run wild. तो उसको एक तरीके से ट्रेन किसने करा? मुराद ने करा. He trained the horse to behave nicely. And that is why in the end John Byro says कि भाई ये तो पहले से ज्यादा स्ट्रांग होके लौटा है and better tempered. He is so well behaved. I thank God. And
जॉन बायरो बोलता है आई थैंक गॉड माई हॉर्स इज बैक एंड ही इज स्ट्रॉन्गर एंड बेटर टेम्पर्ड. अब वहीं पे अंकल कॉस्ट्रोव बैठे थे. सो माई अंकल कॉस्ट्रोव हु वॉज इन द पार्लर. व्हाट इज द पार्लर? सो यू कैन से इट्स लाइक अ sitting area, so basically like a drawing room. So my uncle Kostrov, who was in the parlor, became irritated and shouted. इसी बात पे अंकल कॉस्ट्रोव को गुस्सा हो गया और वो जोर से बोले, Quiet man, quiet! Your horse has been returned. Pay no attention to it. और एक बार और अंकल कॉस्ट्रोव बोलते हैं कि अरे keep quiet भाई, your horse has been returned. Pay no attention to it. So this is the lovely story that we completed about these two boys, Aram and Murad, and about this beautiful white horse whom they had actually stolen, but वो उसको correctly तो stealing नहीं बोलते हैं because they loved horse riding and they did not, ill-treat the horse or sell the horse for some economic gains. They were just crazy. This is the word, crazy. पागल थे for horses. इतना प्यार था उनको, They had this craziness for horses. And they kept the horse with them for technically अगर देखें तो a month and 2 weeks. That was the time that the horse was with Murad, and of course 2 weeks with the presence of Aram. So this is the story, my dear children, the summer of the beautiful white horse. I hope you enjoyed it. Now let us see these question answers. So children, when I say NCERT question answers, मतलब ये book के questions. Okay, NCERT syllabus की ही book है जो यहाँ आपको लगी हुई है in your syllabus. So see here, you should know what is this. So here it says this is your book and this is by the NCERT. So when I say NCERT, मतलब the prescribed book by the National Council of Educational Research and Training. ठीक है, तो NCERT का मतलब होता है जो आपकी बुक लगी हुई है आपके सिलेबस में. So the NCERT questions for this chapter here are on page number 8. Let us see what are the questions. Question number 1. You will probably agree that the story does not have breathless adventure and exciting action. Then what in your opinion makes it interesting? अब ये आप ही बताएंगे. देखो, स्टोरी में बहुत ज्यादा एडवेंचर, एक्शन, थ्रिल नहीं है, बट फिर भी इट इज इंटरेस्टिंग. तो वाई डिड यू फाइंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग, ये आप बताएंगे. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट वाई डू यू फाइंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग. आपको इंटरेस्टिंग क्यों लगी स्टोरी, अपने पॉइंट्स आप यहां बताएंगे. नंबर 2, डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियंस स्ट्रिकन. यहां पे मैंने क्या बोला था आपको, दैट द बॉयज बिकेम गिल्टी कॉन्शियंस. सो कॉन्शियस क्या होती है बेटा, द वॉइस, द इनर वॉइस, व्हेन योर सोल इज टॉकिंग टू यू, जैसे हम बोलते हैं ना आपके अंदर की आवाज, मन की आवाज. तो मानो कोई गलत काम कर लें, चाहे किसी को पता भी ना लगे, बट कहीं ना कहीं अंदर से कोई आवाज आती है ना कि नहीं यार, गलत तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए. दैट इज योर कॉन्शियंस स्पीकिंग टू यू. ठीक है, तो डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियंस स्ट्रिकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड. डरे हुए थे क्या? डरने का तो कोई स्कोप ही नहीं था. क्यों? क्योंकि जॉन बायरो ने तो यहाँ पे इजीली एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई तुम्हारी फैमिली तो इतनी ऑनेस्ट है कि तुम लोग तो चोरी कर ही नहीं सकते, तो ये डेफिनेटली मेरा हॉर्स नहीं है, ये जरूर मेरे हॉर्स का ट्विन है, उसका ट्विन ब्रदर है. सो डेफिनेटली यस, द बॉयज वर कॉन्शियस स्ट्रिकन. वो गिल्टी हो गए थे, वो कॉन्शियस स्ट्रिकन थे, उनकी कॉन्शियस उनको प्रिक कर रही थी कि व्हाट हैव वी डन, हम अपने फैमिली का नाम खराब कर रहे हैं. So yes, they were conscious stricken. The third question, और इसी को आप यहाँ पे हाईलाइट करेंगे कि क्या उनको फील हुआ. Third question says, one day back there in good old days, when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. ये beginning of the story है, बिल्कुल जैसे story begin हो रही है. The story begins in a mood of
नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया मतलब अब आप अपने पुराने बीते दिन याद कर रहे हैं, ठीक है. सो कैन यू नरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो अगर आपकी लाइफ का ऐसा ही कोई इंसिडेंट रहा है बचपन का जिसको अब आप ऐसे ही याद कर सकते हैं जैसे एरम याद कर रहा है. इफ यू हैव एन इंसिडेंट दैट यू रिकॉल विद लॉट ऑफ मेमोरीज, so you can narrate that. Otherwise, no problems, you can leave this question. Question number 4. The story revolves around characters who belong to a tribe in Armenia. Page number 1, I have highlighted it. Murad and Aram are members of which tribe? The Garoglanian family. Okay. So, in this question it says, locate Armenia and Assyria on the atlas and prepare a write-up on the Garoglanian tribes. So, here I don't want you to do this. ये क्वेश्चन आप नहीं करेंगे, बट इसकी जगह आप क्या क्वेश्चन करेंगे? यू विल गिव मी द कैरेक्टर स्केच ऑफ अंकल कॉसरोव एंड मुराद. इन दो कैरेक्टर्स का कैरेक्टर स्केच आप मुझे देंगे इंस्टेड ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4. मैप है, एटलस है, वेरी गुड, उस पर मार्क करो. देखो कहाँ है आर्मेनिया, देखो कहाँ पे है असायरिया, ठीक है. और इन पर्टिकुलर दो कैरेक्टर्स के आप ऊपर बात के बारे में लिखेंगे, अबाउट मुराद एंड अबाउट अंकल कॉस्ट्रोव. ओके. एंड इफ आई हैव सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस आई विल गिव देम टू यू. वरना क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 character sketch. These 3 questions you have to do in your register. उसी के साथ if I have some extracts with me in the PDF, I will float them to you. In case if you have any problem, any doubt, you can get back to me. Right, children? So with this, I conclude the session. We have finished the chapter Summer of the Beautiful White Horse. And don't forget, these are important points here. Talking about the Armenian tribe, और उसमें भी the Garoglanian family. Okay? So with this, I wind up. Take care of yourselves, complete your work, and if there is any question, anything, you have my number. You can WhatsApp it to me the way you are doing, and please complete your work. Do not keep things in pending, and I hope you are all staying safe. So take good care of yourself. Bye bye.